Hi guys, I am Praveer and I am going to help you out on your preparation for the computer graphics exam. Now this is a joint initiative by skilltricks.com and naisadak.com. So computer graphics is a very much scoring exam, not very tough if you understand the things. Okay, so in this exam the basic things come like types of scan, second chapter, first chapter of SHOM series, and then comes the algorithms for scan conversion of a point, line, circle. These algorithms are very simple and very scoring question आता है यहाँ से कि evaluate the points of a circle or a line based on these algorithms. So these are not very difficult. एक बार go through them, they are very easy, but do go through them because काफ़ी scoring है ये chapter. Then comes the 2D transformations. इसमें for each transformation there is matrices like ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, रोटेशन एंड स्केलिंग. ठीक है, सो उसके सिर्फ मैट्रिसेस देखने एक बार. दिस इज ऑल्सो नॉट टू डिफिकल्ट. ठीक है, बट यू हैव टू सी द मैट्रिसेस. देन कम्स द क्लिपिंग, द पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग एंड द पॉलीगन क्लिपिंग. क्लिपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर अच्छे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बार, बट स्कोरिंग ये भी है बिकॉज सीधा क्वेश्चन आएगा कि do a line clipping or explain the line clipping algorithm, right? And then we'll be doing projections. Projections is a difficult chapter if the numericals comes, but theory wise it is not that much difficult. ठीक है, numericals अगर समझ आते हैं तो do them because they are very difficult to understand, right? Then comes एक टॉपिक आता है छोटा सा 3D ट्रांसफॉर्मेशंस. तो प्रोजेक्शन से पहले वो आता है, उसमें जस्ट अ थर्ड डायमेंशन इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग मैट्रिसेस ऑफ द 2D ट्रांसफॉर्मेशंस. जो ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन की मैट्रिक्स होती हैं उसमें थर्ड जेड कंपोनेंट ऐड होता है, बस नॉट टू मच देयर. देन कम्स द इल्यूमिनेशन मॉडल्स, जिसमें देयर आर शेडिंग मॉडल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट, द Corrard shading and Phong shading models. And then comes the solid modeling. The solid modeling or illumination model, these try to do them from Baker if you have, because Baker में बहुत अच्छे से दिया हुआ है solid modeling and this illumination model. Right, so today I'll be covering the majorly clipping, projections and shading models. I also forgot to mention about hidden surfaces. इसमें there are just the hidden surfaces algorithms, and these are not, I mean practically questions नहीं आते solve करने के लिए इसके ऊपर majorly. most oftenly theory आएगी, अगर आएगी तो उसके ऊपर तो simple ज़्यादा difficult algorithms नहीं है इसके अंदर, तो go through them. तो एक बार go through कर लेना एक बार. ठीक है, तो let's begin. Firstly, ठीक है, पहले बेसिक में सिंपल होगा, स्कैन्स वगैरह होगा, डू देम. एल्गोरिथम्स नॉट आर टू डिफिकल्ट. कोई डाउट है इन दोनों में आता है कोई अगर, प्लीज़ आस्क देम एट आवर स्किलट्रिक्स पेज. ओके, और यू कैन आस्क देम एट आवर इवेंट पेज टू, द पास IPU एग्जाम इवेंट पेज. ओके, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल 2D ट्रांसफॉर्मेशंस, इसमें सिंपल मैट्रिसेस होंगी. Like for example, if you translate a point from A to B, so सिर्फ उसके x और y कोऑर्डिनेट्स में कुछ ऐड करना होगा, तो उसकी मैट्रिक्स उसमें सिर्फ ऐड करेंगे हम, बस tx 0 dy की मैट्रिक्स होगी और 2/2 की मैट्रिक्स होगी. Similarly for scaling and for rotation as well. So let's begin with clipping. Now clipping is like अगर कोई विंडो में अगर for example there is a situation where you have to show a specific part of an object, उसको हम क्लिपिंग बोलते हैं. कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक विंडो में कंफर्म करना. ठीक है, इसमें अच्छे से तुम कहानियाँ लिख सकते हो थ्योरी वाइज. एंड
clipping is of majorly three types: point clipping, line clipping एंड पॉलीगन क्लिपिंग. ठीक है, पॉइंट क्लिपिंग सिंपली यही है कि अगर पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है विंडो के तो उसके सिर्फ कोऑर्डिनेट चेक करोगे. ठीक है, सिंपली लेट्स टेक एन एग्जांपल फटाफट. ठीक है, तो पॉइंट अगर लाई करना है उसके अंदर तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा पॉइंट का, दैट शुड बी बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द विंडो. ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट्स आर एक्स मिन, एक्स मैक्स. ठीक है, सिमिलरली अगर अंदर लाई कर रहा है तो वाई भी इसके अंदर ही आना चाहिए एंड वाई शुड बी वाई मिन और वाई मैक्स के बीच में आना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स कम ऑन टू द लाइन क्लिपिंग पार्ट. पेपर में क्वेश्चन लाइन क्लिपिंग में डायरेक्टली आ सकता है कि सॉल्व दी और क्लिप द लाइन फॉर दीज एंड पॉइंट्स एंड दीज विंडो पॉइंट्स. ठीक है, या फिर आएगा एक्सप्लेन दिस कोहेन सुदरलैंड एल्गोरिथम. ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन इस नाम से ही आता है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दैट. इस एल्गोरिथम में मेजर पार्ट यही होता है कि वी डिवाइड द लाइन इनटू थ्री कैटेगरीज. मतलब अगर लाइन टोटली विजिबल है तो उसके बोथ एंड पॉइंट्स विल लाई इन द विंडो. सेकेंड कैटेगरी इज इफ इट इज नॉट विजिबल, तो उसके दोनों एंड पॉइंट्स विल लाई आउटसाइड द विंडो. और जोन सी भी लाइन इन दोनों कैटेगरी में नहीं आती है, दैट इज आवर क्लिपिंग कैंडिडेट. मतलब वो इसको क्लिपिंग विंडो को काट रही होगी दो पॉइंट्स पे, तो वो दो पॉइंट्स निकालने होते हैं इस एल्गोरिथम में, ताकि हम उन दो पॉइंट्स की हेल्प से वी कैन ड्रॉ द लाइन. ठीक है, सो नॉट विजिबल तब होगी अगर उसकी दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स, दोनों एंड पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स आर ग्रेटर देन एक्स मैक्स और लेस देन एक्स मिन. फॉर एग्जांपल अगर एक्स मैक्स 4 है, एक्स मैक्स, तो अगर दोनों एंड पॉइंट्स 5 और 6 हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स उनके, देन दैट लाइन इज नॉट विजिबल. ठीक है, एंड सो लेट्स बिगिन विद this algorithm. This is an example showing the three categories of lines. Your CD is completely not visible, AB is totally visible. तो दो clipping कैंडिडेट हैं KL and JI. So the basic funda behind this algorithm is that we assign 4-bit codes to each of these endpoints. ठीक है, 4-bit कोड होता है, हर एक endpoint का असाइन किया जाता है. ठीक है, if a point is lying completely inside the clipping window, it is given 0000 as its 4-bit code. ठीक है, तो अगर दोनों एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन आर 0000, then that line is totally visible like AB. राइट, अब हम बिट्स असाइन करते हैं if the point is at any of the regions. Right, the first bit is whether the point is above y max or not. ठीक है, so अगर y max के ऊपर है अगर, यानी कि उसका y कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन y max. फॉर एग्जांपल अगर y max 5 है और अगर हमारा y 6 है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर आएगा. सो द फर्स्ट बिट इज सेट, दैट इज फर्स्ट बिट को 1 कर देते हैं हम if y is greater than y max. ठीक है, सेकेंड बिट इज if the point is lying below y min और above y min. ठीक है, तो इसके लिए y should be less than y min. अगर y min हमारा 4 है तो if y is 2 तो सेकेंड बिट विल बी 1. ठीक है, फर्स्ट बिट if y 1 होगी अगर if y is greater than y max, सेकेंड बिट 1 होगी if y is less than y min. और थर्ड बिट इज कि whether the point is on the right of x max or on its left. ठीक है, अगर राइट में होगा then its third bit would be 1, अगर लेफ्ट में होगा तो 0. Similarly the fourth bit is for x min, अगर उसके लेफ्ट में आ रही है तो it will be 1. ठीक है, यानी x is less than x min तो ये 1 होगा, अदरवाइज 0. सो इस तरीके से हम 4 बिट कोड निकाल सकते हैं फॉर बोथ आवर एंड पॉइंट्स. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्लिपिंग विंडो के पॉइंट्स गिवन होंगे और लाइन के पॉइंट्स भी गिवन होंगे. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन कैलकुलेट दीज 4 बिट कोड्स. ठीक है, अब इन 4 बिट कोड्स निकालने के बाद द फर्स्ट स्टेप इज टू चेक
कि क्या ये दोनों डबल ज़ीरो हैं। अगर दोनों डबल ज़ीरो हैं देन द लाइन इज़ टोटली विजिबल, ठीक है। बट अगर दोनों डबल ज़ीरो नहीं है, दैट इज द सेकंड स्टेप। व्हाट वी डू इज हम दोनों का बिट वाइज एंड लेते हैं, दोनों एंड पॉइंट्स के 4 बिट कोड का, ठीक है। अब अगर ये लॉजिकल एंड इज नॉट डबल ज़ीरो, ठीक है, देन दैट लाइन इज टोटली आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो, ठीक है। अगर रीजन कोड मतलब दोनों की जो एंड पॉइंट्स की जो 4 बिट कोड है उनका अगर लॉजिकल बिट वाइज एंड करेंगे तो अगर वो क्लिपिंग कैंडिडेट होगी तो इट शुड कम आउट टू डबल ज़ीरो, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल, अगर एक पॉइंट मेरा ऊपर वाले रीजन में है यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो ऊपर वाला कोड होगा 100, नीचे का 0100, दोनों का बिटवाइज एंड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0000, ठीक है। तो इट इज़ अ क्लिपिंग कैंडिडेट, ठीक है। सो एक बार फटाफट रिव्यू करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द 4 बिट रीजन कोड्स, सेकंड स्टेप टू चेक देम द बोथ आर 0 और नॉट, एंड द थर्ड पॉइंट इज इफ दे आर नॉट 0000 तो उनका बिटवाइज एंड करेंगे हम, और क्लिपिंग कैंडिडेट होने के लिए इट शुड बी 0000, ठीक है। तो हमने इस लाइन को बांट लिया आउट ऑफ द 3 कैटेगरीज, ठीक है। फिर नाउ वी हैव टू फाइंड द एंड पॉइंट्स इफ इट इज़ अ क्लिपिंग कैंडिडेट, ठीक है। जैसे इन दिस गिवन लाइन ए बी में I have to find out a dash and b dash. Now these are find out by simple line equations. Y is equal to m of x minus x1. Oh sorry, y minus y1 is equal to m times x minus x1. ठीक है, सिंपल लाइन पॉइंट्स गिवन होंगे, दोनों एंड पॉइंट्स सबके गिवन है, तो यू कैन फाइंड आउट सिंपली दिस वैल्यूज बाय पुटिंग, like for example I have to find out b dash, so simply put y is equal to y max, so we can get out the x coordinate in the line equation of AB. Okay, so this is the line clipping algorithm. इसमें the first step was to find the endpoints code, कोड को साइन करके we have to check if both are 0000. अगर नहीं है तो we have to do a logical bitwise and then वो and 0000 आना चाहिए for line to be a clipping candidate, ठीक है। वो आने के बाद then you have to find the endpoints of it, the points which are lying on the clipping window, जहाँ से उसको कट कर रही है लाइन, वो निकालने का सिंपल तरीका है लाइन की इक्वेशन निकालना। ए बी लाइन की इक्वेशन निकालो, ठीक है, और उसमें y इज इक्वल टू मतलब y मैक्स पुट करके देखो, ठीक है। इफ इट कम्स आउट टू बी x, मतलब x आता है तो वी कैन गेट दिस लाइन। और सेकेंडली देयर कैन बी अ लिटिल बिट ट्रबल कि हम इस लाइन को कहाँ पे प्लॉट करें एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमें इनके रीजन कोड्स पता है कि 1000 ऊपर ही आएगा उसके, और उस हिसाब से वी कैन प्लॉट द लाइन, और हमें निकाल लेंगे कि हाँ भाई हमें क्या पुट करना है, वाई इक्वल टू एम एस पुट करना है कि वाई इक्वल टू एम एन पे काट रही लाइन, ठीक है। मतलब कौन सी लाइंस काट रही हैं हमारी एक्चुअल लाइन को, मतलब एक्स मिन की लाइन काट रही है, एक्स मैक्स काट रही है, या वाई मिन काट रही है, वाई मैक्स काट रही है। ओके, सो विद दिस वी एंड विद लाइन क्लिपिंग। इसके बाद देयर इज पॉलीगन क्लिपिंग। इन पॉलीगन क्लिपिंग देयर इज नथिंग स्पेशल, बट इसमें अगर कितना भी पॉलीगन होगा वी हैव टू चेक फॉर ईच ऑफ द लाइन, ठीक है। ईच ऑफ द एंड पॉइंट्स के लिए हमें चेक करना होगा विद द सेम लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, ठीक है। सो विद दिस वी एंड विद क्लिपिंग। इफ यू हैव any doubts with clipping, please post them to our event page. Okay, so we have done with clipping, and next is 3D transformations. As I said, it's the same with as 2D, but simply a new dimension is added to them, right? So let's move on to projection straight away. इसके numericals are very difficult. थोड़े बहुत एग्जांपल्स गिवन आर इन शॉम सीरीज में एग्जांपल गिवन होंगे, अगर समझ आते हैं तो प्लीज़ डू देम, बिकॉज चॉइस में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के, ठीक है। सो प्रोजेक्शन क्या होती है? जस्ट एन इमेज ऑफ समथिंग
ऑन टू समथिंग, मतलब कोई एक पॉइंट की आपको इमेज निकालनी होगी एक ऑन टू अ प्रोजेक्शन, मतलब ऑन टू अ व्यू प्लेन। ठीक है, तो जिस पे इमेज आती है वी कॉल इट अ व्यू प्लेन। ठीक है, और द लाइन जॉइनिंग द इमेज एंड द सोर्स वी कॉल इट प्रोजेक्टर्स। ठीक है, सो आपको एक सीधा बोला जाएगा कि एक लाइन गिवन होगी एंड वी हैव टू प्लॉट इट्स इमेज, उसके इमेज पॉइंट्स निकालने होंगे ऑन टू द व्यू प्लेन। ठीक है, सो projection is basically of two major types, perspective projection and the parallel projection. Now these are divided on the basis of the angle between the projectors, मतलब जो लाइन जॉइनिंग है सोर्स और उसकी इमेज के बीच में, based on those lines the type is decided। अगर वो दोनों लाइन आपस में इंक्लाइंड है, as in this example, ठीक है, if these both lines are at an angle then this is an example of perspective projection। Similarly, if these lines come out to the parallel like this, then it is an example of parallel projections। Now these two are further divided into their own categories। Okay, let's see them। Perspective is divided into further 1 point, 2 point, 3 point vanishing points। मतलब इसमें क्या होता है कि in 1 point projection there is a one principal vanishing point, और 2 में 2 होते हैं, 3 में 3 होते हैं। What is the principal vanishing point? ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे मतलब द प्रोजेक्टर्स कट दी प्रिंसिपल एक्सेस। जो प्रोजेक्टर्स हमारे हैं सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन, मतलब सोर्स से लेकर इमेज तक, वो कहाँ कहाँ पे एक्सेस को काट रहे हैं। अगर वो एक पॉइंट पे काटते हैं सिर्फ एक्स वाई जेड को, किसी भी एक को काटते हैं सिर्फ, तो इट इज़ अ 1 पॉइंट। और अगर 2 पॉइंट पे काटते हैं एक्स वाई जेड को, देन 2 पॉइंट। और सिमिलरली 3 पे काटते हैं तो 3 पॉइंट। ठीक है, नाउ पैरेलल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक। मैंने कहा था ना कि पैरेलल में दोनों प्रोजेक्टर्स पैरेलल होते हैं आपस में। ठीक है, नाउ दीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल दे मेक विद द व्यू प्लेन। जहाँ पे हमारी इमेज बन रही है वो जिस प्लेन में है उसके साथ क्या एंगल है प्रोजेक्टर्स का। इफ़ दे आर परपेंडिकुलर इट इज़ ऑर्थोग्राफिक, इफ इट इज़ ऑब्लिक, एक एंगल पे है प्रोजेक्टर्स टू द प्लेन, देन इट इज़ अ ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये देख लो, इट लाइक दिस। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्थोग्राफिक सिंस द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू द व्यू प्लेन, जो कि एक्स वाई प्लेन है हमारा, उसके पैरेलल है द प्रोजेक्टर। सिमिलरली अगर वो ऑब्लिक है लाइक हेयर, ठीक है, so they are oblique projections। ठीक है, now these are further divided। ठीक है, the first is the multi view and axonometric। ठीक है, now multi view is when the view plane is parallel to the principal planes। अगर हमारा व्यू प्लेन जो है वो किसी भी प्लेन के पैरेलल है, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ठीक है, then it is a multi view। Axonometric is if it is not parallel to the principal axis। ठीक है, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक। ठीक है, देन कम्स द टाइप्स ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शंस, द कैवलियर एंड द कैबिनेट। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल प्रोजेक्शंस, तो इसमें कुछ इमेज का साइज छोटा होने का चांस होता है। मतलब इफ़ यू लुक, जैसे ये ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पे, एक एल शेप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो इफ़ यू व्यू इट एट अ डिफरेंट एंगल, मतलब ऐसे एंगल पे देखें जिससे कि इसका साइज़ छोटा हो जाता है कभी कभार। ठीक है, ईडी में पड़ा होगा कभी। ठीक है, साइज निकालते थे हम। ठीक है, सो कैवलियर प्रोजेक्शन वो टाइप है जिसमें कोई भी शॉर्टनिंग नहीं होती। मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्शन का ऐसा एंगल, ठीक है, जिस एंगल पे जो लाइंस आ रही है उनकी फोरशॉर्टनिंग नहीं होती। ठीक है, कैबिनेट में
these are exactly half. लाइंस की लेंथ होती है, दे आर एग्जैक्टली हाफ. ठीक है. सो दिस इज द थ्योरी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्शंस. अब बेस्ड ऑन दिस प्लेन थ्योरी, मतलब एक्स वाई और वाई जेड की क्वेश्चन वगैरह, प्लेन्स की क्वेश्चन निकाल के इस पे मेरे को चाहते हैं कि हमें पॉइंट्स निकाले होते हैं इमेज के ऑन द व्यू प्लेन. ठीक है. सो विद दिस वी एंड विद आवर प्रोजेक्शंस पार्ट. ठीक है. नाउ what's left is hidden surfaces, shading and solid modeling. ठीक है. Hidden surfaces, as I said, not too difficult. When you once read it, अच्छे समझ आ जाएगा. If any doubt comes, please ask at the event page. ठीक है. So now let's move on to the shading models. ठीक है. So straight away, yep. Phong शेडिंग मॉडल होता है हमारा एक. इसमें भी टेक मतलब ऑल सोर्सेज ऑफ लाइट की इंटेंसिटीज को लेते हैं हम, उसकी बेस पे एक इक्वेशन निकालते हैं. ठीक है. इस इक्वेशन में काफ़ी सारे वेरिएबल्स आते हैं कि एम्बिएंट लाइट के अकॉर्डिंग. ठीक है. इससे पहले थोड़ा सा वो पार्ट आता है कि टाइप ऑफ लाइट सोर्सेज, लाइक पॉइंट सोर्स और लेंथ सोर्स, वो बहुत सिंपल पार्ट है, थ्योरी पार्ट है, वो आराम से हो जाएगा. ठीक है. सो इसमें सिर्फ इक्वेशन है, थ्योरी इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ भी. ठीक है. मेन इज़ द शेडिंग मेथड्स. मतलब हमें कोई भी एक मॉडल को कलर करना होता है, शेड करना है उसको अगर, तो हाउ टू डू दैट. ठीक है. फर्स्ट इज अ कांस्टेंट शेडिंग. मतलब वी पिक अप वन कलर, वी पिक अप वन शेड और उसको पूरे फेस पे भी शेड इट. दैट इज कांस्टेंट शेडिंग. सेकेंड इज द गोराड शेडिंग. ठीक है. इसमें व्हाट वी डू इज कि हम जो एलिमिनेशन फॉर्मूला है जो कि फोंग ने दिया था, या कोई भी फॉर्मूला, कोई भी अलग फॉर्मूला, कैलकुलेटेड फॉर द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन मैश. मतलब कोई भी पॉलीगन को निकालना है अगर, सो उसके वर्टिसेस पे निकालो एंड इंटरपोलेट, मतलब उस कलर के आसपास की वैल्यूज निकालते जाओ एंड उसको प्लॉट करते जाओ फॉर दीज पॉइंट्स नेबर टू इट. ठीक है. मतलब एक पॉइंट निकाला, उसके आसपास के पॉइंट्स की ऑलमोस्ट सेम वैल्यू, फिर उसके आसपास के पॉइंट्स की ऑलमोस्ट सेम वैल्यू. दैट इज इंटरपोलेशन. तो सिर्फ वर्टिस पे निकालेंगे हम एंड वी इंटरपोलेट टू ऑल ऑफ द फेस. ठीक है. दिस इज गोराड शेडिंग. ठीक है. इसमें और फोंग में देयर इज ओनली वन डिफरेंस कि गोराड में वी डू इंटरपोलेशन एट द वर्टिसेस, while in Phong we do interpolation by the normals. जब हम हर एक फेस का एक नॉर्मल निकालते हैं, ठीक है, उस नॉर्मल के लिए वी कैलकुलेट द इल्यूमिनेशन फार्मूला एंड वी इंटरपोलेट द वैल्यू ऑफ n टू द होल फेस. ठीक है. बेटर इज Phong शेडिंग. व्हेन यू रीड बेकर, अगर है किसी के पास तो रीड करना उसको, उसमें लिखा होगा कि वाई गोराड इज़ बेटर, उसमें Phong इज़ बेटर. उसमें एक इमेज भी दे रखी होगी कि मतलब when you do Phong shading, तो the object obtained after shading is very much better than the Gouraud shading. Okay, so this is the end of the shading part. इसमें majorly question difference यही आता है कि explain Phong shading, explain Gouraud shading, या difference between Phong and Gouraud. ठीक है. अब next is left part is solid modeling. ठीक है. नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है. बट जस्ट गिव इट अ रीड थ्रू. ठीक है. बहुत सिंपल होती है, नॉट टू डिफिकल्ट. सो एक बार रीड थ्रू करोगे देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. ठीक है. उसमें ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऊपर ऊपर से एक बार कर लेना उसको. ठीक है. ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हारे लिखने के लिए कुछ हो. सो विद दिस आई शुड एंड विद the preparation part of your. Now the part is left from your side to prepare well and do the exam well. So okay, thank you very much for watching this video and all the very best for your exam tomorrow. I hope you all do very well. Again, this is a presentation prepared by skilltest.com and naisala.com.
If you have any doubts, please post it at our event page. So thank you very much.